Till the time Sadhi is joining, we do a meditation, 5-6 minutes. Sure. Or do you want to see that Dr. Emoto's water theory? मैंने भेजा था, सब लोगों ने देख लिया क्या वो? All okay? Yeah. You come. Yeah, it's okay. सबको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? Is looking. This next series of photographs are the work of Japanese researcher Mr. Masaru Emoto from his book, The Message from Water. Mr. Emoto's work provides factual evidence that human vibrational energy, thoughts, words, ideas, and music affect the molecular structure of water. Please remember that water comprises over 70% of a mature human body and covers the same amount on our planet. Water is the very source of all life. This photo shows the beautifully formed geometric design of the Yushi Spring water. This next photo is from the Shimanto River, the last clean spring in Japan. Notice the extraordinary geometric forms. The fact that the molecular structure of water can be affected by our consciousness, our intent, and our sounds is extremely important. This photo is from the Mount Cook Glacier in New Zealand. Mr. Emoto has been visually documenting these molecular changes in water by means of his photographic techniques. He freezes droplets of water, then examines them under a dark field microscope that has photographic capabilities. His work clearly demonstrates the diversity of the molecular structure of water and the effects of the environment upon the structure of the water. This photo is from the fountain in Lourdes, France. This photo is from contaminated water from the Yodo River in Japan. In this photo, we can compare the contaminated water with clean stream water. Look at the difference. Mr. Emoto decided to see what effects music would have upon the structure of water. He placed distilled water between two speakers for several hours while playing different music and then photographing the crystals that formed after the water was frozen. This photo is of water being exposed to Beethoven's Pastorale. This photo is the effect of Bach's Air for the G-string on the water. This photo is water exposed to Chopin's Farewell Song. This next photo is water being exposed and affected to music that was designed for healing.
This photo is of water being exposed to the Kawachi folk dance. This photo shows the effect of heavy metal music upon the water. Here now we can compare the effects of healing versus heavy metal music and what happens to the water molecules. Mr. Emoto decided to see how thoughts and words affected the formation of untreated distilled water crystals by typing words onto paper and then taping this paper onto glass bottles overnight. This photo shows the effects of the words, "Thank you." This next photo shows the effects of the words, "Love and appreciation." This photo shows the effects of the words, "You make me sick, I will kill you." And here we can compare the effects of "thank you" with the "you make me sick, I will kill you." Very, very different geometric forms being occurred through the intention. Now this photo is of a very polluted and toxic water from the Fujiwara Dam. Here now is the same water from the Fujiwara Dam after a Buddhist monk had offered a prayer over it. Prayer, that sound coupled with intention, seems to have an extraordinary ability of restoring water to its natural, harmonious, geometric symmetry. And in this photo we can compare the toxic water and then the effects of praying over the water. It's really quite impressive. These photographs that we have just seen show proof that not only does sound have the ability of affecting and changing physical structure, but that with regard to the molecular structure of water, that our intent with our sound is extremely important. This may have great implications for the future of both personal and planetary harmony and healing. तो ये वीडियो जो था, 1 second. Dee, are you there? Yes, I'm here. Okay. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. So everyone is here. I'm Yes. so sorry today for being late. It's okay. So, We just played that Dr. Emoto's water theory today. so आप लोगों ने सबने वो वीडियो देखा. I'll quickly explain उस वीडियो में क्या था. उसका crux of the matter ये था कि डॉक्टर इमोटो जो जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक साइंटिफिक रिसर्च किया था. बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च था ये, और उसने ये किया था कि 3 अलग अलग कंटेनर्स, वाटर कंटेनर्स, जो उन्होंने कंटेमिनेटेड वाटर लिया था एक डैम से, वहां पे उन्होंने उनको 3 अलग अलग रूम्स में उस वाटर को, उस पानी को जगह पे अलग अलग रखा. 3 अलग अलग रूम्स में रखा. एक एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने उस पानी के साथ में, और वो एक्सपेरिमेंट्स आपने अभी इस वीडियो में भी देखे होंगे. वो ये किए थे कि किस तरीके से पानी, जो कि बहुत ही एसेंशियल चीज है, नॉट ओनली पूरे प्लैनेट में, हमारी बॉडी में, बल्कि वो किस तरीके से हमारी फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को, हमारे जो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में चल रहा होता है, उसको तक भी एब्जॉर्ब कर लेता है. उसके बारे में बेसिकली बताया गया था कि किस तरीके से जब एक रूम में जो पानी रखा था, फर्स्ट रूम में, उसमें वो उसको बहुत ही
खराब शब्द, खराब वर्ड्स उसको बोलते रहते थे हमेशा, हेट्रेड वाले, कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू 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 ये वो, ऑल द बैड थिंग्स, नेगेटिव वर्ड्स उसको बोला करते थे लगातार ओवर द पीरियड ऑफ आई थिंक 1 month तक शायद ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था. आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शायद ऐसा कुछ था. एंड दूसरे में उन्होंने उसको बहुत अप्रिसिएशन दिया, बहुत लव दिया, और बहुत अच्छे वर्ड्स उसको बोले. और उसी तरीके से थर्ड में भी उन्होंने उसको बहुत ग्रैटिट्यूड दिया, बहुत अच्छे वर्ड्स बोले. तो किस तरीके से 1 महीने के बाद पानी में क्रिस्टल्स फॉर्म जब हुए, पानी ने अपना नेचर चेंज किया और उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हुए, तो किस तरीके से जो वो जिस पानी को उन्होंने खराब बोला, बहुत गंदा बोला, जो वहां पर उन्होंने बकायदा बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे उनको बुलाया था कि वो उनको इस तरीके से मतलब एवरी डे उनको सेम चीज बोले. तो कहने का मतलब ये था उनका कि हर वो चीज जिसको हम बार 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 नेगेटिव बोलते हैं या फिर अच्छा बोलते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी, तो वो वैसा ही उन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें वैसे ही रिजल्ट्स देता है. तो जो अच्छा जिनको बोल रहे थे वो एकदम सुंदर, बहुत सुंदर, आपने देखा होगा, तो बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए थे, एकदम ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स, इतने अच्छे शेप के क्रिस्टल्स फॉर्म हुए थे. लेकिन जहां पर जिस रूम में उन्होंने वो उसको अपशब्द कहे, उसको गंदे वर्ड्स बोले, लगातार बोलते गए 28 दिन तक का शायद एक्सपेरिमेंट था, तो वहां पर किस तरीके से वो जो एक फॉर्मेशन हुई क्रिस्टल्स की, वो इतनी खराब, इतनी दिखने में भी इतनी गंदी, और ओवरऑल पानी इतना कंटेमिनेटेड हो गया वापस से कि हमें देखने की इच्छा भी नहीं करे. तो आप सोच के देखिए कि पानी कितना पावरफुल चीज होती है. हम जो पानी पीते हैं, हम जो पानी यूज में लेते हैं, वो इतनी पावरफुल चीज है, क्योंकि हमारी बॉडी मोर देन 70% हमारी बॉडी जो है पानी से बनी हुई होती है. तो उसी तरीके से ये बताया गया था कल के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम बात करें कि पानी एक बहुत ही एसेंशियल चीज है, उसको एटलीस्ट आप पीते टाइम आप अगर पानी इतना एब्जॉर्ब कर लेता है, आप सोच के देखिए, आप जो खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप उस टाइम पे अगर आप क्या आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो सोचिए आपके अंदर कितनी अच्छी पॉजिटिविटी जा रही है. सो ये कोई स्टोरी नहीं है इधर उधर की कहीं की भी, ये साइंस है, ये एक रिसर्च बेस्ड स्टडी है जो डॉक्टर इमोटो ने करी है. ये फैक्ट है. आप चाहें तो इसके बारे में और वीडियोस देखिएगा, आप पढ़िएगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो, बट इट्स अ प्रूवन साइंस. सो दैट इज व्हाट वी वांटेड टू टेल यू. आई होप कल का असाइनमेंट सबने किया होगा, बहुत सिंपल असाइनमेंट था, एंड सबको मजा आया होगा, और उसको आप लाइफ लॉन्ग करिए. इट्स गोइंग टू बी मैजिकल. डोंट फॉरगेट योर मैजिकल डस्ट. वो बहुत ही मैजिकल चीज है, एंड बड़ा मजा आता है, स्पेशली बच्चों को भी जरूर करवाइएगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर नाउ, व्हिच इज द मनी मैग्नेट. आज कोई रीड करना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है रीड करने के लिए? Yes, please, Sakshi. Sakshi, you can unmute yourself. Yes, hello. Good morning, everyone. Good morning. Am I audible enough? Yeah. Okay. It is only with gratitude that life becomes rich. Gratitude is riches and complaint is poverty. It is the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Hello, shall I read more? Dee, you are mute. I could not hear anything. Sakshi ने बोल दिया? Shall I repeat? Oh yes. Okay, I shall repeat.
I shall repeat. I shall repeat. Yes, so sorry. I'm so sorry. I think I It's was. it is only with gratitude that life becomes rich. Gratitude is riches and complaint is poverty. It is the golden rule of your whole life. Whether it's your health, job, relationships, or money, the more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. सिर्फ कृतज्ञता ही वो एक गोल्डन चीज है जिससे आप रिच हो सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं. ग्रेटिट्यूड ही अमीरी है बेसिकली. और कंप्लेन करना, उसके बारे में हमेशा बोलते रहना, ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये गरीबी है. बेसिकली ये गरीबी इज इक्वल्स टू व्हाट? कंप्लेनिंग. कंप्लेन करते रहना, हमेशा कमियां निकालते रहना. और गोल्डन रूल है ये आपकी लाइफ का. आप मान के चलिएगा कि ये आपके हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में यही चीज वर्क करती है. चाहे अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं बार बार रिपीटेटिवली, कि चाहे वो हमारा हेल्थ हो, हमारा जॉब हो, हमारे रिलेशनशिप्स हो, हमारा पैसा हो, कुछ भी हो, अगर हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड की कमी है तो हम पॉवर्टी, चाहे वो गरीब, हम हेल्थ से गरीब हो, या हम रिलेशनशिप्स में हमारे लाइफ में गरीबी हो, या पैसे की गरीबी हो, कुछ भी हो, हमारी लाइफ में गरीबी अगर है तो वो कंप्लेन करने के एटीट्यूड से है. हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड से हमारी लाइफ में गरीबी रहेगी. और अगर हम ग्रेटिट्यूड को रिप्लेस कर देते हैं कंप्लेन वाले एटीट्यूड से, यानी कि हम बार बार थैंकफुल होना स्टार्ट कर देते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है उसके लिए, तो हमारी लाइफ रिप्लेस हो जाती है. हमारी लाइफ किससे रिप्लेस हो जाती है? अमीरी से रिप्लेस हो जाती है. हमारी हेल्थ भी अमीर हो जाती है, हमारा जॉब, हमारा वर्क, हमारा रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, और हमारा मनी तो है ही वो अबंडेंटली बढ़ने लग जाता है. जितने ज्यादा आप पैसे के लिए ग्रेटफुल होंगे जो करंटली आपके पास है, चाहे भले ही कितना भी हो, चाहे कम हो, ज्यादा हो, जितना भी हो, हमें हमेशा हमारे पास कमी लगता है. ऑल्दो वो कितना भी कम क्यों ना हो, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है, तभी वो आगे बढ़ेगा हमारी लाइफ में. स्टॉप कंप्लेनिंग. टुडे ऑनवर्ड्स आपको एक पॉइंट बनाना है कि आपके पास जितना है उसके लिए आप थैंकफुल तो होइए पहले. इसका मतलब ये नहीं कि आप एस्पायर करना बंद कर दें, आगे कमाना के लिए सोचना बंद कर दें, या आगे के अपनी जो डिजायर्स है उसके बारे में सोचना बंद कर दें, काम करना बंद कर दें. लेकिन जो करंट है उसके बारे में थैंकफुल होना स्टार्ट करिए, और जो करंट नहीं है उसके बारे में कंप्लेन करना बंद कर दीजिए. कंप्लेन करने की बजाय उसके बारे में हार्ड वर्क करिए, वो ज्यादा बेटर है. यस साक्षी. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. तो जो आज की मैजिकल प्रैक्टिस है, ये वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है. जो लोग स्पेशली कंप्लेन करते हैं मनी के बारे में, अपने पैसे के बारे में, उसको किस चीज में कन्वर्ट करने के लिए? ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए, कृतज्ञता में कन्वर्ट करने के लिए. इसमें डबल पावर है उन सर्कमस्टांसेस को चेंज करने की. अगर आप इसको ढंग से करेंगे, दिल से करेंगे, तो इसमें डबल पावर है. आप अगर अपनी जो भी कंप्लेन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्रेटिट्यूड में कंप्लेन करना है. सो आपको ये जो गरीबी से उठाकर एक अमीरी की तरफ लेके जाएगा, वो क्या लेके जाएगा? ग्रेटिट्यूड लेके जाएगा. किस तरीके से लेके जाएगा वो हम अभी आगे पढ़ते हैं. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people are not aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. सो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो एक्चुअल में कंप्लेन कर रहे हैं मनी के बारे में, पैसे के बारे में वो कंप्लेन कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं होता.
लेकिन अगर उनकी लाइफ में पैसे की कमी है, पैसे की तंगी है, तो इसका मतलब आपका प्रूफ है, वो अपने आप में एक प्रूफ है कि आप मनी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, चाहे जानबूझ के नहीं कर रहे हो। आप अपने आपसे आप कुछ ऐसे थॉट्स ला रहे हैं, आप ऐसे कुछ एक्शंस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आ चुका है, कंप्लेनिंग नेचर आ चुका है वो आपके अंदर। वो आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके कुछ एक्शंस हो सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं उनके बारे में, चाहे वो नेगेटिविटी हो, कुछ भी जेलसी हो मनी को लेकर, आप किसी और से जेलस हैं, या फिर आप चिंता में रहते हैं हमेशा पैसे को लेकर, या आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जिससे गरीबी आपके अंदर अट्रैक्ट हो रही है किसी भी तरीके से। आपको हो सकता है जाने अनजाने में आपसे हो रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है। अगर आपको लग रहा है आपके पास पैसे की वाकई में कमी है तो If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. अगर आपके पास पैसा नहीं है अपने बिल्स चुकाने के लिए, जो मंथली हमारे बिल्स आते हैं उनको चुकाने के लिए, EMIs हैं या फिर कोई भी रेंट्स हैं वो चुकाने के लिए, अगर आपके पास आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है और उसके लिए आप आप कंप्लेन कर रहे हैं, देन आप क्या कंप्लेन कर रहे हैं? आप उस बिल्स के बारे में कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, उन सर्विसेज के बारे में कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं लैक ऑफ मनी, आपके जिंदगी में जो पैसे की कमी है उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली? इन रिटर्न आप पॉवर्टी को अपनी तरफ, गरीबी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है कि आप वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा थॉट्स दे रहे हैं, दिन भर आपके दिमाग में जो चल रहा है उस चीज को। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि आपको पता है बिल आपको आज नहीं तो कल आपको देना है, राइट? तो वो सोचने से बेटर है आप थैंकफुल होइए कि आप इस केपेबल हैं, आप इस लायक हैं कि आप उस चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं जिसका आप बिल दे रहे हैं। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आप कंज्यूम कर रहे हैं तो नेचुरली आपको बिल देना पड़ेगा। लेकिन हम कंप्लेन करते रहे कि नहीं हमारा बिल तो इतना आ गया, ओ गॉड इतना बिल आ गया। ये करने से बेटर है आप उस बारे में थैंकफुल होइए कि मेरे पास आज इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से मेरे घर का इतने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चल पाते हैं। आप थैंकफुल होइए उस चीज के लिए। यस कृतिका दी, आई थिंक थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे। Yeah. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills, but in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money, and begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who built you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता है और या फिर कमी होती है पैसे की, तो हम क्या होता है जब हमारे हाथ में कोई बिल आता है, चाहे पानी का, बिजली का, किसी का भी बिल आता है, तो हम लास्ट चीज मतलब सोच भी नहीं सकते कि हम उस बिल के लिए थैंकफुल होंगे। कभी शायद ही कभी हम उस बिल के लिए थैंकफुल हुए होंगे। छोटे से छोटा बिल हो या बड़े अमाउंट का बिल आ गया हो, आप और मैं कभी भी उसके लिए थैंकफुल नहीं हो सकते थे, राइट? लेकिन एक आप करके देखिएगा इस चीज को, और आज की प्रैक्टिस भी इनफैक्ट यही है कि आपको उन बिल्स को लेकर थैंकफुल होना है कि आपने वो सर्विसेज यूज करी हैं, आप उतने केपेबल हैं कि आप उन सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सर्विसेज हो सकता है किसी के आपके पास जो बिल्स आते हो वो बिल्स आते हैं, वो सॉफ्ट कॉपीज आती हैं, किसी की हार्ड कॉपीज आती हैं, लेकिन बिल्स आती हैं, चाहे वो EMIs आते हैं। आपने EMI ली, अगर आपने लोन लिया है तो नेचुरली आपने अपने किसी अच्छी चीज के लिए लिया होगा। हो सकता है आपने होम लोन लिया हो, बिजनेस लोन लिया हो, तो आप सोच के देखिए आपका घर बन रहा है उस लोन से। आप अगर वो लोन नहीं लेते तो वो घर नहीं बन पाता रहा।
तो आप थैंकफुल होइए उस चीज के लिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिटिकल। आप बार बार उस चीज को कंप्लेन करेंगे कि मेरे को लोन का पैसा चुकाना है, करना है, वो तो करना ही है, आपको पता है। तो बार बार उस चीज को लेके हम नेगेटिविटी लाएं अपने अंदर, बार बार कंप्लेनिंग एटीट्यूड लाएं, उससे कुछ फायदा हुआ है आज तक आपको? किसी को कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली वो पे तो करना ही पड़ता है। अगर लेट करेंगे तो फाइन के साथ करना पड़ेगा, और टाइमली करेंगे तो विदाउट एनी फी करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ता है। तो इट्स बेटर कि हम उसको खुशी खुशी कर दें, बिना किसी कंप्लेनिंग एटीट्यूड के कर दें। तो अगर हम, ये तो एक एस्पेक्ट हुआ बिना कंप्लेन करना, लेकिन अगर उस कंप्लेन को हम रिप्लेस कर दें ग्रेटिट्यूड से, उन सर्विसेज को जो हमें मिल रही हैं, चाहे वो बैंक से मिल रही हो या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी है या पानी है या आपके मोबाइल के बिल्स हैं, किसी भी चीज का बिल्स है, मोबाइल की सर्विसेज आपको मिल रही है, सोच के देखिए मोबाइल कितना यूजफुल है। तो आप उसको ग्रेटिट्यूड से अगर आप रिप्लेस कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपके बिल्स में इफेक्ट आ जाता है। इट्स सो मैजिकल, इतनी पावरफुल चीज है ये, आप नोट करके देख लेना। अगर आपने दिल से इस चीज को कर लिया, तो आप खुद देख लेना आपके बिल्स में कमी आती है कि नहीं आती। इट्स सो सरप्राइजिंग, आपको खुद को लगेगा। To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets, so be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. आप बेसिकली जब मैंने अभी यही बेसिकली एक्सप्लेन किया जो इसमें लिखा हुआ है। आप सोच के देखिए कि अगर बैंक्स या फिर कोई जो लोग फाइनेंस पे आप लोगों को पैसा देते हैं, आप इंटरेस्ट पे आप लोगों को पैसा देते हैं, जो फाइनेंसर्स होते हैं, अगर ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते, तो एक कॉमन पर्सन के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता सरवाइव करना, है या नहीं है ये बात? अगर ये जो बेसिक सर्विसेज हैं जहां से हमें हम लोग पैसा लेते हैं, अपने बिजनेसेस के लिए इतना पैसा हम लोग उधार लेते हैं, अपने घर बनाने के लिए, अपने लाइफ में और भी बहुत सारी चीजों के लिए लोन ले लेते हैं, हम गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हम ले लेते हैं। सोच के देखिए, ये बैंक जैसी कोई चीज होती ही नहीं, कहीं से उधार लेने की कोई चीज होती नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, सब कुछ आप ही को आपकी सेविंग से ही सारा काम करना पड़ जाता। तो सोच के देखिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती। आधे लोग तो सड़क पे रह रहे होते, क्योंकि उनके पास वो कितना भी जिंदगी भर कमा ले, शायद उतना वो उनके वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड से वो सेव ही नहीं कर पाते। राइट? इजंट इट करेक्ट? ये बात सही है या नहीं है? आप लोग को लगता है या नहीं लगता? तो हमें रिप्लेस क्या करना है? कंप्लेन को रिप्लेस करना है ग्रेटिट्यूड से। या साक्षी, If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. चाहे आपको एक बिजली का बिल देना हो, गैस कनेक्शन हो, या फिर पानी का बिल हो, या फिर आप जो आपको जो भी घर में ठंडा या गर्म पानी मिल रहा है, या फिर आप हर वो अप्लायंस जिससे आप घर में यूटिलाइज करके आप कुछ ना कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, चाहे वो हमारे घर में क्लीन वाटर के लिए कोई हमने प्लांट लगा रखा हो, गीजर लगा रखा हो, फोन हो, हमारे इंटरनेट के बिल्स हो। सोच के देखिए अगर ये सब चीजें नहीं हो, आपकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाती है। एक भी दिन आपके पास में फोन नहीं होता अगर,
आप कम्युनिकेट करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है अपने अपने वर्क प्लेस पे, अपने अपने घर पे, अपने फैमिली से बात करना। जो लोग स्पेशली अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रहते हैं उनके लिए कितना इजी हो गया है सब कुछ आज, कितना इजीली वो फटाफट सारे वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, हम फोन कॉल्स कर लेते हैं, हम कितने क्लोजर आ गए हैं। उसके बावजूद हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं मेरा फोन का बिल इतना आ गया, इतना आ गया। आप कंज्यूम करेंगे तो नेचुरली आएगा, लेकिन वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड अगर आप बंद कर दें, ग्रेटिट्यूड उसको देना स्टार्ट कर दें, उस कंपनी को, उस फोन को जो आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपकी लाइफ मच मच बेटर हो जाएगी। और आप और आपकी लाइफ में अमीरी को अट्रैक्ट करेंगे। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, अमीरी का मतलब अच्छी हेल्थ, अच्छा फैमिली, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा अच्छा मूड, सब कुछ अच्छा अच्छा होना भी अमीरी ही होता है। सो थिंक अबाउट, आप सोच के देखिए हर उन पलों के लिए, उन मोमेंट्स के लिए जो आपको ये इन चीजों से मिल रहा है, इन सर्विसेज से मिल रहा है, इन बिल्स जो कि आपके हाथ में आते हैं, उन बिल्स के बदले में जो आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं। इतनी अमेजिंग सर्विसेज है जो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हमारी फिंगर्स के अंदर अंदर है, हमारे हाथों में है, जो हम फटाफट यूज कर सकते हैं। किसी को ईमेल, किसी को कॉल, पानी बटन दबाया, गर्म पानी बटन दबाया, ठंडा पानी, व्हाटएवर, फ्रिज खोला, हमारे सामने फ्रेश चीजें जो हमें खानी है, सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। सो ट्राई, मतलब आप कोशिश करिए उनके लिए ग्रेटफुल होने के लिए। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words "thank you paid" on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill "thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add "thank you paid." So, जब से रोंडा को, जो इस बुक की ऑथर है, उनको ग्रेटिट्यूड की ये मैजिकल पावर के बारे में उनको पता चला, तब से वो क्या करती आई हैं आज तक भी, कि वो अपने हर बिल जो भी उनको मिलता है, किसी भी चीज का बिल जो उनको चुकाना होता है, उस पे क्या लिख देती हैं वो, थैंक यू पेड, मतलब धन्यवाद, मैंने ये पे कर दिया है, ऑलरेडी पे कर दिया है। और वो एक भी सिंगल बिल भी मिस नहीं करती हैं। ये एक्सरसाइज करने के लिए वो एक भी सिंगल बिल मिस नहीं करती हैं। पहले जब शुरू में उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता था ना, जब वो बिल पे करने के लिए पैसा भी नहीं होता था, तो भी वो उस पे क्या लिखती थी, पहले वो उस पे लिखा करती थी थैंक यू फॉर द मनी, मतलब उस पैसे के लिए धन्यवाद जो मेरे को मिला है। चाहे वो नहीं भी हो तो भी वो उसको धन्यवाद दे रही थी। और जब उनके पास वो पैसा आ जाता था उस बिल को चुकाने के लिए, तो फिर वो लिख दिया करती थी थैंक यू पेड, मतलब मैंने पे अप कर दिया है, तो वो उसके लिए थैंक यू फील कर रही है। Today, you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them "Thank you for the money" and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in this line in capital bold letters, "Thank you for the money." सो आज आपको भी यही करना है। आज आपको Shall I क्या read further? नो वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग। सो आज आपको भी यही करना है। आज आपको अपने कोई भी जो अभी इस महीने के जो आपने बिल्स अगर अभी तक कोई चुकाए नहीं है, अभी तो कुछ ऐसे बिल्स आ रहे होंगे जो अभी तक आपने नहीं पे करे होंगे, उन बिल्स को आपको लेना है और उस पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी, मतलब उस पैसे के लिए धन्यवाद जो आप इस बिल को चुकाने के लिए यूज करेंगे। एंड आपको उसके अंदर दिल से थैंक यू फील करना है, दिल से कृतज्ञ फील करना है। चाहे वो आपके पास वो पैसा है अभी तक या नहीं है, हो सकता है आप अपनी सैलरी आने का वेट कर रहे हो या आप कोई पेमेंट आने का वेट कर रहे हो, उसके बाद आप वो पैसा चुकाएंगे। लेकिन आपके पास पैसा है या नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मनी दैट यू हैव और यू डोंट हैव,
आपको ये लिखना है हर वो बिल पे जो आपने अभी तक नहीं चुकाया है। आपके कुछ अगर ऐसे बिल्स हैं जो ऑनलाइन आते हैं, ईमेल पे आते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपका कोई बिल आता है, तो आप वो बिल अपने आप को ईमेल करिए। अपने आप को ईमेल करके उसका सब्जेक्ट लाइन आपको क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी। अगेन बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में आपको यही लिखना है कि जो पैसा मुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, ये आज का एक्सरसाइज है, आज का असाइनमेंट है। यस साक्षी। Next, find 10 bills you have paid in the past. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पुराने बिल्स लेने हैं, पुराने कोई भी 10 बिल्स लेने हैं। चाहे वो, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी, रोंडा ने नहीं लिखा हुआ ये, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप बड़े से बड़े अमाउंट का बिल लीजिएगा, इनफैक्ट यहाँ पर जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, और आप सोच के, और आपको उस पर बड़ा बड़ा क्या लिखना है, थैंक यू पेड। मैंने पे कर दिया है और मैं थैंक यू फील कर रही हूँ, थैंक यू फील कर रहा हूँ इस चीज के लिए। और जब भी आप उस पे ये लिखेंगे आपको दिल से थैंक यू फील करना है, दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना है, दिल से आभार फील करना है उन सर्विसेज के लिए जिसके लिए भी आपने वो बिल पे किया है। जितना ज्यादा आप दिल से फील करेंगे उतना ज्यादा पैसा आप एक्चुअली में अपनी तरफ मैजिकली अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। पुराने बिल्स अगर आपको लगता है आपके पास नहीं है, आपने फेंक दिए हैं या आपने संभाल के नहीं रखे हैं, तो कोई बात नहीं। आप चाहे आप चाहे वो आपके दूध वाले का बिल क्यों ना हो, आपके घर में आप अखबार वाले का बिल ही क्यों ना हो, छोटी सी एक पर्ची भी जो वो लिख के दे देता है ना, दैट इज ऑल्सो अ बिल। ठीक है, तो उस बिल पे भी आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है वो बकायदा कोई एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट का जो वो बिल आता है हमारे पास किसी भी चीज का, वैसा ही कोई बिल हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर हमारा किसी भी चीज का बिल आता है, पुराने कोई भी बिल्स आप नेट पे आपकी ईमेल्स में आता हो, आप उनके भी प्रिंट आउट्स निकाल के ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको करना जरूर है, मिनिमम 10 बिल्स निकाल के आपको ये करना जरूर है। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money, and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. आज से आपको यही करना है। हर महीने जब भी आपके बिल्स आएंगे, किसी भी चीज के बिल आए, छोटे से छोटे, जो आपका 100-200 रुपए, आपके गाड़ी क्लीन करने वाला अगर कोई आता है, या आपका अखबार वाला हॉकर आता है, या कोई भी आपके बड़े से बड़े EMIs जा रहे हैं, तो उन सारे बिल्स को लेकर आपको जैसे ही आपके पास बिल आता है, आपको मन में ब्रीफली, चाहे 5 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, आपको उन सर्विसेज के लिए थैंक यू फील करना है, जो जिनके बदले में वो आपके पास में वो बिल्स आए हैं। आपको थैंकफुल फील करना है, आपको कंप्लेन नहीं करनी है, ओ गॉड इतना बिल आ गया। ठीक है, आपको कंप्लेन नहीं करनी है, आपको दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना है। अगर आप इमीडिएटली पे कर पा रहे हैं उन बिल्स को, तो आपको उन बिल्स पे लिखना है थैंक यू पेड, थैंक यू मैंने पे कर दिया है। अगर आप उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे पास अभी इनफ पैसा नहीं है इनको पे करने के लिए, तो आपको उन पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, पैसे के लिए धन्यवाद। और आपको ऐसे फील करना है एज इफ आपके पास वो पैसा है, ऐसा नहीं फील करना कि पैसा नहीं है। एंड जब वो आप पे कर दें, जब कभी भी 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद जब भी आप उसको पे कर दें, आपको लिखना है थैंक यू पेड। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ प्लीज। Kritika दी थोड़ा scroll. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more,
Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money, so when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. सो जो ग्रैटिट्यूड है वो बेसिकली एक मैग्नेट की तरह है जो अट्रैक्ट क्या कर लेता है, पैसे को अट्रैक्ट करता है। जितना दिल से आप कृतज्ञ फील करेंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कभी कभी हमें उससे 10 गुना, कभी कभी 100 गुना, या कभी कभी आपकी इमेजिनेशन से भी आगे का पैसा हमें रिटर्न में मिल जाता है, सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड की मैजिकल प्रैक्टिस को यूज करने से। जितना ज्यादा आपकी लाइफ में, अभी भी आप इमेजिन करके देखिए, आपकी लाइफ में जितना अबंडेंस है ना पैसे का, आपके पास जितना पैसा है, आप कहीं ना कहीं उस पैसे को आपने ग्रैटिट्यूड दिया होगा। उस सर्विसेज को जो आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आपने दिल से थैंकफुल फील किया होगा, जिसकी वजह से वो सर्विसेज आज आपको इतनी अच्छे से मिल पा रही हैं। आज हम और आप जो एक इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, एक फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जिसपे भी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आज आप सबसे पहले इसी को थैंकफुल फील करिए, इन सर्विसेज को थैंकफुल फील करिए कि आपको ये सर्विसेज मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से आज आप और हम ये इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा आप दिल से करेंगे, उतना दिल से आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे किस तरीके से आप मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। कब आपकी 10 रुपए की चीज के सर्विसेज के लिए कब आप हजारों रुपए अट्रैक्ट कर लेंगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। लेकिन जब आप ये ग्रैटिट्यूड पावर, मैजिकल पावर को जब आप पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, आपको एक एक चीज रियलाइज होने लग जाएगी, अच्छा ये मेरे ये करने से हुआ होगा। तो आप कॉन्शियस एफर्ट्स डाल के प्लीज आज आपको ये करना है। थैंक यू so much Sakshi for reading the chapter for us. Thank you very much. Let's quickly revise what we've studied today. So आज आप अपनी blessings लिख कर आए होंगे, I hope 10 blessings लिख कर आए होंगे, जिसमें हर blessing के बाद आपने reason जरूर दिया होगा, और उन 10 blessings के बाद में आप thank you feel करा होगा, आपने दिल से thank you feel करा होगा। उसके बाद आज आपको कोई भी एक जो बिल आपने अभी तक पे नहीं किया है उसको आपको लेना है, उस पे आपको, जो आपने अभी तक पे नहीं किया है उसकी बारे में बात कर रही हूँ, और उस पे आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। हर उस पैसे के लिए धन्यवाद जो इस बिल को पे करने के लिए आपको यूज करना है। आपके पास पैसा हो या नहीं हो करंटली, लेकिन आपको फील यही करना है एज इफ आपके पास वो पैसा है, और आपको दिल से ग्रेटिट्यूड फील करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको 10 बिल्स लेने हैं पुराने, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, चाहे वो कल ही पे किया हो या साल भर पहले पे किया हो, डजंट मैटर, कितना भी पुराना हो सकता है, कितना भी रिसेंट बिल हो सकता है, लेकिन वो आप पे कर चुके हो। उन बिल्स को लीजिए और उनके ऊपर आप लिखिए थैंक यू पेड। दिल से आप थैंक यू फील करिए, सोच के देखिए आप इतने केपेबल थे कि आपने ये बिल्स पे कर पाए आप। ओके और रात में सोने से पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना ना भूलिए, जिसमें आपको पूरे दिन को स्कैन करना है, उसमें से बेस्ट चीज निकाल के उसके लिए दिल से थैंक यू फील करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे प्लीज बताइए कि ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस और ये काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली जो 2 प्रैक्टिस हमें रेगुलर जो हमें करते आना है, उनको आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो नहीं कर रहा है प्लीज वो बताइए कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ एवरीडे। प्लीज ऑनेस्टली बताइए। ऐसा कोई है? I think everybody is doing. Because it is really important. आप सोच के देखिए कि यही वो 2 प्रैक्टिस क्यों हैं जो बार बार रौंडा करा रही है एवरीडे, क्योंकि ये रियली में इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना। आपको रियलाइज हो जाएगा 28 डेज के बाद। इनफैक्ट ये तो ऐसी प्रैक्टिस है जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। मैंने तो इसका पूरा सोच रखा है कि मुझे लाइफ लॉन्ग करना है, तो आप लोग जरूर करिएगा। बिल्कुल भी इसमें लापरवाही मत करिएगा कि हाँ बाद में कर लेंगे, अभी तो दिन की शुरुआत है, चलो दिन में लिख लेंगे, शाम को लिख लेंगे। सुबह
First thing in the morning should be counting your blessings. Last thing in the night should be your magic rock. About this. Now, about ये जो आपका chapter है, I think सारिका ने कुछ पूछा है. But I don't pay any bills. What should I do? सारिका, आप कह रहे हो, उपासना का भी यही क्वेश्चन है कि आप लोग कोई बिल नहीं पे करते हो. आपका कहने का मतलब है, हो सकता है आपके घर में आपके हस्बैंड या आपके फादर या आपके ब्रदर कोई भी और पे करते हो या कोई भी करता हो, लेकिन आपके घर में आपकी मेड्स आती हैं, ठीक है, आपके घर में आपके अखबार वाला आता है, आपके घर में आपके क्लीनर्स आते हैं, कोई तो आता होगा, किसी की तो सर्विसेज लेते होंगे आप लोग. बट ग्रोसरी और आपका मोबाइल बिल्स भी होते हैं ना. हाँ, ग्रोसरी के बिल्स भी तो यूज हाँ, कर सकते हैं. आप सब्जियां लेते हो, आप किराने का कुछ भी सामान लेते हो. ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में कुछ भी सर्विसेज आप यूज नहीं करते. हाउ इज दैट पॉसिबल? आपके घर में अखबार आता होगा, आपके घर में कुछ तो आप मेड्स की सर्विसेज यूज में लेते होंगे, आप सब्जियां लेते होंगे, कुछ तो होता होगा. ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका मेंटेनेंस होगा सोसाइटी का कुछ. हाँ, तो जो आपका हस्बैंड पे कर रहे हैं ग्रोसरीज एंड ऑल, उनके बिल्स तो होंगे ना आपके पास. हाँ, सो आप वो भी यूज कर सकते हैं ना. जरूरी नहीं है कि आप ही उसको पे कर रहे हो, आप ही के नाम का बिल हो. इट्स ओके अगर आपके नाम का बिल है तो बहुत अच्छी बात है. आप खुद पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके हस्बैंड कर रहे हैं, बात एक ही है ना. आप उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आप उनको जरूरी नहीं है फाइनेंशियली सपोर्ट करें. हम बार बार यही कह रहे हैं, अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसे से नहीं है. No, it's not always that a husband pays everything. मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसे से नहीं होती है. अमीरी और गरीबी रिलेशनशिप से भी होती है, हेल्थ से भी होती है. हम हेल्थ से कितने रिच हैं, हम रिलेशनशिप से, आपका जो आपके स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप है वो कितना रिच है. तो अगर आप अपने हस्बैंड के लिए सपोर्टिव ही नहीं रहेंगे, उनके लिए ग्रैटिट्यूड ही नहीं पे करेंगे कि वो ये सारे बिल्स पे कर पा रहे हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट. सो यही, हाँ, मैं सारे का वही आपको बता रही हूँ कि आप इस चीज को दिमाग में रख के कि आपके हस्बैंड इतने केपेबल हैं कि आप वो बिल्स ये पे कर पा रहे हैं, आप वो दिमाग में रख के आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप अर्निंग मेंबर हो या बिल्स आप ही के नाम के आते हो तो ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो. ऐसा नहीं है. आप भी तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन बिल्स को पे करने के लिए. अगर आप अपने घर को नहीं संभाल रहे होते तो आपके हस्बैंड को संभालना पड़ता, तो फिर वो कैसे अर्न करते, राइट? तो आप कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं ना कहीं उन बिल्स को पे करने में. आप सोच के देखिए, इनडायरेक्टली आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आप घर को संभाल रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप जो भी आप एक्सरसाइजेस आप दिन भर में आपके एक्टिविटीज रहते हैं वो आप क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके हस्बैंड कमा रहे हैं. आपके हस्बैंड क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि आप घर पे वो पूरे घर को मैनेज कर रहे हैं. तो आप जॉइंट एफर्ट डाल के वो पैसे को घर में ला रहे हैं जिसकी सर्विसेज आप लोग यूज कर रहे हैं. जो खाना आप खा रहे हैं, जो मेड्स आप यूज कर रहे हैं, या आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ईएमआईज हैं, घर का ईएमआई लोन है, फलाना है, वो सब आप एक जॉइंट एफर्ट होता है. आप ये एक जना क्रेडिट नहीं ले सकता इस चीज के लिए. अर्निंग मेंबर की जरूरी नहीं है क्रेडिट ले. I think Sarika wants to say उनके पास फिजिकल बिल्स नहीं है. That's okay. जैसे मेड्स को अपन कोई ऐसे बिल नहीं देते, तो आप सारिका एक पेपर पे, प्लेन पेपर पे, यू कैन जस्ट राइट योर मेड का नेम एंड एक फेक सा बिल बना लो, और उसको कि आप उसको इतना पैसा महीने का दे रहे हो, या और ग्रोसरी आपके हस्बैंड ने खरीदी, अगर वो उसकी स्लिप लेके आ रहे हैं तो आप उस पे लिख दो. नहीं तो आप एक छोटा सा पेपर पे वो चीज लिख दो कि हाँ एग्जैक्टली ये चीज मैंने यूज किया, इतना अमाउंट है, एंड देन बस उस पेपर पे डाल दो. नहीं तो अगर आपके पास ईमेल पे या आपके हस्बैंड के ईमेल पे वो बिल आ रही है, तो आप वो अपने आप को एज सब्जेक्ट लाइन में चेंज करके वो फॉरवर्ड कर सकते हो. आई होप आई एम able to explain you, Sarika, and you're clear about it. Yes, Neha, you wanted to add something to it? No, the same thing, that she can write it on a piece of paper. That's what I wanted to say. Yeah. Okay. Sarika, are you clear now? And Upasana, are you clear? Okay, great.
एंड ओल्ड बिल्स तो सबके पास मिल ही जाएंगे, आई एम श्योर। कहीं ना कहीं से ईमेल्स पे, कोई भी वेबसाइट्स की, हम लोग इतनी सर्विसेज यूज करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सबके बिल्स तो आते ही हैं हमारे पास, तो वो तो मिल ही जाएंगे। न्यू बिल्स के लिए आज की जितनी भी आप सर्विसेज यूज कर रहे हो, एक पेपर लो, लिखो एंड थैंक यू पेड या थैंक यू फॉर द मनी, वी कैन डू इट। ओके, ओके। यस, एनी अदर क्वेश्चन? विजुअलाइजेशन का जो एक्सप्लेन करना था वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोगों को जाना रहता है इस टाइम तक। तो या तो हमें हमारा सेशन 6 बजे का करना पड़ेगा, तब जाके हम विजुअलाइजेशन ले सकते हैं, या फिर हमें थोड़ा लेट तक रुकना पड़ेगा। अब आप लोग डिसाइड करिए कि क्या करना है। या तो कल का सेशन हम, कल का चैप्टर बड़ा है एक्चुअली। ओके, फिर कल तो नहीं, जिस भी दिन छोटा चैप्टर है उस दिन, यस कल तो बहुत बड़ा चैप्टर है। जिस भी दिन छोटा चैप्टर है उस दिन 6 बजे का टाइम हम रखें, क्योंकि उसके अगला चैप्टर जो मैजिक 11th चैप्टर है वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। हाँ, मैजिक मॉर्निंग वाले दिन वी कैन डू इट। तो यानी कि परसों, टुडे इज व्हाट, टुडे 6th नहीं, टुडे आज क्या है? आज 5th है, आज टीचर्स डे है। Oh, okay. So first of all, happy Teachers Day to everyone. Thank you all of you for being, teachers to everyone. We teach everything. मैं तो बहुत जल्दी, I'm a very quick learner. I take a lot of, things from every good thing that everyone can teach me. I'm a quick learner, I think. And you are a good teacher too. For teaching, happy Teachers Day to you too. Thank you all of you. What Aastha ji? कुछ नहीं। So funny. So thank you everyone, and परसों हम फिर विजुअलाइजेशन रखते हैं, 6 बजे का हमारा सेशन का टाइम रखते हैं। तो 6 o'clock हम शार्प हमारा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और लास्ट में हम विजुअलाइजेशन लेंगे। So लास्ट के 20-25 minutes we'll talk about visualization. First half an hour, 45 minutes हम चैप्टर पे फोकस करेंगे। So कल के बाद परसों का हम ये रखते हैं, ठीक है? Thank you so much everyone. New member today, Prachi Gattani. Okay, hi Prachi. Prachi, unmute yourself, say a hi